Now, without any further ado, I request CA Sheetal Sharma to formally introduce our today's speaker. Thank you, Ritu ma'am. It's indeed a pleasure to give a formal introduction for our speaker, who is from our own study circle. She has cleared her chartered accountants in first attempt with post-qualification experience of more than 10 years in the field of indirect tax. She has been associated and has been a regular speaker in our study circles on various topics, and also she has been associated on various forums organized by Borivali Women's Study Circle, Bhinder Social Group jointly with ISKCON, Study Group for Acquaintance and Fellowship, and have spoken on various topics related to GST and income tax. Apart from her professional achievement, she is also a YouTuber. She is an active player on Women's Day in cricket organized by our Vasai branch, sharing her updates and spreading knowledge on a continuous basis through her YouTube channel. She's very active and regularly being an icon for women empowerment. We welcome you, ma'am. With this, I request you to please begin with the session. Thank you, Sheetal. Thank you so much for the warm welcome. Am I audible firstly? Yes, very much. Okay. So my first question would be here, as in ITC is a very good topic, to be frank. Every day when you have a GST calculation, ITC is required. If you don't have the ITC knowledge, you will not be able to calculate it properly. Okay, my first question here would be, what would be prefer? Me taking the lecture in English or Hindi? Ma'am, as per your convenience. As per your convenience, our members are good with both, I think. Members may post their responses in the chat box. Whatever is preferred, I would be more happy. Shilpa ji, this is totally your choice. You can go with the language you are comfortable with. Okay, no problem. So I'll take a mixed one. I'll share my screen. Yeah. Is my screen visible? Yes. Okay, so let's start with the topic. Firstly, what is ITC credit? Credit of supplies used for providing taxable supplies. Taxable supplies means what? Whenever you have an output, output मतलब क्या? आपका output supply. Two type के supplies होंगे. Taxable as well as non-taxable as well as exempt. Taxable मतलब क्या? जिस पे आप GST पे कर रहे हैं. And non-taxable मतलब क्या? जिस पे आप GST पे नहीं कर रहे हो. तो आपको यहाँ बाइफर्केट करना है आपके आउटपुट में कि कौन सा ऐसा आउटपुट है जो जिस पे आप जीएसटी पे कर रहे हैं, कौन सा ऐसा आउटपुट है जिस पे आप जीएसटी नहीं पे कर रहे. जीएसटी नहीं पे कर रहे हैं मतलब क्या हो सकता है, या तो वो एग्जेम्प्ट है या तो फिर जो रेसिपिएंट है वो पे करने वाला है या तो फिर नॉन टैक्सेबल है, जैसे कि पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब अभी भी जीएसटी नेट के बाहर है. तो इन दैट केस वो नॉन टैक्सेबल माने जाएंगे. तो आईटीसी क्रेडिट आपको किसका पूरा मिलेगा? वो जो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज होता है. जो स्पेसिफिकली नॉन टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज होता है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. एंड ऐसा क्रेडिट जो दोनों जगह यूज हो रहा है, यानी कि टैक्सेबल एज वेल एज नॉन टैक्सेबल में, इन दैट केस आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कॉमन क्रेडिट कितना है और किस तरीके से वो डिवाइड होगा दोनों के बीच में, यानी कि टैक्सेबल एज वेल एज नॉन टैक्सेबल में. ये क्रेडिट किसी भी चीज का हो सकता है, कैपिटल गुड्स का, इनपुट सर्विसेज का. यहाँ पर जीएसटी में कोई भेदभाव नहीं किया गया है कि टैक्सेबल क्रेडिट कौन से, मतलब एज इन कैपिटल गुड्स का अलग, इनपुट्स का अलग लेने चाहिए, इनपुट सर्विसेज का अलग लेने चाहिए. ऑस्टवाइल लॉ में जहां पर एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट था, वहां पर अलग अलग लिया जाता था. यानी कि आप इनपुट्स का क्रेडिट जिसपे एक्साइज और वैट लग रहा है, वैट का क्रेडिट वैट में लेते थे, एक्साइज का क्रेडिट एक्साइज में लेते थे.
इनपुट सर्विस पे सर्विस टैक्स था जिस पे आप क्रेडिट नहीं ले सकते थे, तो वो इनपुट सर्विसेज पे आप मतलब क्रेडिट नहीं ले सकते इन द सेंस जो वैट वाला पोर्शन है, वैट के अंदर आप नहीं ले सकते थे। सर्विस टैक्स और भी प्रोविजन था लेने का। कैपिटल गुड्स की जहां बारी आती है वहां पर आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था। जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, कॉमन क्रेडिट, गुड्स, इनपुट और इनपुट सर्विसेज में डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर मैं मोटा मोटा देखूं, सो फर्स्ट you have to see what type of credit you are giving and what against what it is used. What type of credit is eligible and not eligible, that we'll be discussing later. But what is the output? The major thing is what is the output. If the output is taxable, credit would be available. If the output is non-taxable, credit would not be available, even if it's an eligible credit. For example, if I say ये फोन बनाना है हमें, मान लीजिए ये फोन एग्जेम्प्टेड है, बट इसमें जो बैटरी है वो जब आप खरीदते हो, आप सिर्फ असेंबलिंग करते हो, आप बैटरी खरीदते हो, प्लास्टिक खरीदते हो, कवर खरीदते हो, स्क्रीन खरीदते हो, जिसपे आप सब पे टैक्स पे करें। लेकिन फाइनली जो ये इसमें से आउटपुट आ रहा है वो है आपका फोन जो कि एग्जेम्प्ट है। अगर मान लीजिए, तो जो भी आपने टैक्स पे किया है आपके बैटरी पे, आपके कवर पे, ये मान लिया जाएगा कि आप फाइनल कस्टमर हो एंड आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये जो क्रेडिट है ये अपफ्रंट नो हो जाएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉमन क्रेडिट। काफी लोगों को नहीं पता कि ये कॉमन क्रेडिट को कैसे करना है। मतलब वो क्या करते हैं, कॉमन क्रेडिट का पूरा क्रेडिट ले लेते हैं, जबकि लॉ कहता है कि आप पूरा क्रेडिट नहीं ले सकते हो, आपको डिवाइड करना पड़ेगा एज पर द फॉर्मूला जो उन्होंने दिया है बिटवीन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। आईटीसी अलाउ करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है जो आपके पास होने चाहिए, मतलब आपको है ना फर्स्ट देखना है कि आईटीसी एलिजिबल है क्या। सेकंड, आपके पास ये पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं ये पॉइंट्स फुलफिल कर रहे हैं क्या। थर्ड, आपका आउटपुट सर्विस टैक्सेबल या फिर आउटपुट जो भी आपने दिया है वो टैक्सेबल है क्या। तो ये कंडीशंस क्या है, फर्स्ट हैज रिसीव्ड द इनवॉइस, यानी कि एज अ रिसिपिएंट आपने जो आईटीसी ले रहे हो उसका इनवॉइस आपको मिला है कि नहीं मिला है। सेकेंड है हैज एक्चुअली रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि आपने एक्चुअली में वो गुड्स लिया है या सर्विसेज ली है या आपके बिहाफ पे, आपके इंस्ट्रक्शंस पे थर्ड पार्टी को दिया गया है। थर्ड इज हैज पेड द टैक्स बाय वे ऑफ कैश और क्रेडिट, यानी कि जो आपका वेंडर है उसने उसका टैक्स पे कर दिया है। फोर्थ हैज फाइल्ड द रिटर्न, उस वेंडर ने अपनी रिटर्न जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी है, यानी कि क्या उन्होंने जीएसटीआर 1 में ये शो कर दिया है कि उन्होंने ये सेल्स आपको किया है। एंड फिफ्थ शुड नॉट बी इनएलिजिबल एज पर द लॉ, यानी कि जैसे मैंने कहा था कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी है, वो इनएलिजिबल नहीं होने चाहिए। जैसे ये 5 कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं एंड जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज जो आईटीसी है वो टैक्सेबल सर्विस के सामने यूज हो रहा है, आप क्रेडिट ले सकते हो। तो आपको चेक करना है ये 5 चीजें होनी चाहिए। अगर एक भी चीज नहीं होती, जैसे मान लीजिए कि आपने इनवॉइस रिसीव कर लिया, सर्विस रिसीव कर लिया, लेकिन वेंडर ने अब तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, तो इन दैट केस भी आपको जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आपको ये चीज तो बताइए कि 2B में रिफ्लेक्ट करना आजकल ना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। एक बार आप अपना 1 भूल सकते हैं लेकिन 2B देखना नहीं भूल सकते हैं। इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपको हैं आईटीसी लेते वक्त वो है टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट। ऐसा नहीं है आप जब मर्जी चाहे जब मन में आए जब उठ के मैं क्रेडिट ले लूं, नहीं, इसका भी एक टाइम लिमिट होता है। या तो जिस साल में आपने वो आईटीसी मिला है आपको, यानी कि वेंडर ने आपको इनवॉइस दिया है, आपने पेमेंट कर दिया, आप उस साल में लो, या फिर नेक्स्ट ईयर में जब आप ले रहे तो नेक्स्ट ईयर में एक टाइम बारिंग है। नेक्स्ट ईयर में आप कब ले सकते हैं, टिल द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मतलब जीएसटीआर 9 और 9C आपका, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर रिटर्न प्रीसीडिंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच क्रेडिट पर्टेन्स। यानी कि मान लीजिए अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करूं, अभी आप सभी लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने फाइनलाइज कर रहे होंगे, अब मेरा ड्यू डेट कब है सितंबर रिटर्न का, दैट इज नेक्स्ट 20th अक्टूबर।
तो 20 अक्टूबर से पहले पहले मुझे ये क्रेडिट ले लेना है जो मैंने मिस किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो अभी जब आप सितंबर का रिटर्न भरेंगे आपको ध्यान देना है कि क्रेडिट है जो आपने लास्ट ईयर का छोड़ दिया है और उस क्रेडिट को आपको ये रिटर्न में लेना है। अगर मान लीजिए आप मिस कर देते हैं डेट तो ये क्रेडिट आपका लैप्स हो जाएगा एज पर द लॉ और आपको नहीं मिलेगा फ्यूचर में। फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता किसी ने भी एनुअल रिटर्न पे अपना हाथ मतलब अभी 2021 के लिए किया होगा, क्योंकि अभी तक आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल होने के प्रोसेस में ही है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल हो गए और आपने एनुअल रिटर्न भर दिया है तो ये डेट आपके कोई काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया है, फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द सितंबर रिटर्न whichever is earlier। तो यहाँ पर ये whichever is earlier इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दी तो ये मान के चलेंगे कि उसमें आपने क्रेडिट ले लिया है। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है ये है ड्यू डेट। ऐसा नहीं है आप अपना सितंबर का रिटर्न मान लो दिसंबर में भर रहे हैं तो आपके पास दिसंबर तक टाइम है क्रेडिट लेने का। नो, रॉन्ग। इसमें लिखा है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर रिटर्न, यानी कि जो ड्यू डेट है 20 अक्टूबर या जिन लोग के लिए 22 अक्टूबर है या 24 अक्टूबर है उन लोग के लिए ड्यू डेट रहेगा। सो इट्स इररिस्पेक्टिव व्हाट इज योर डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, इट इज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर रिटर्न। There is no link between the original invoice date and the debit note date. Initially एक लिंकेज था कि जो ओरिजिनल इनवॉइस डेट है उसी का आएगा एंड उसके नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक आप क्रेडिट ले सकते हो ओरिजिनल इनवॉइस और डेबिट नोट का। बट अब ये जो लिंकिंग है वो हटा दिया गया है, यानी कि मान लीजिए अगर आपका ओरिजिनल इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 2021 में इशू हुआ है और उसका डेबिट नोट 21-22 में हुआ है तो आप डेबिट नोट के डेट से आईटीसी क्राइटेरिया काउंट करेंगे, ओरिजिनल इनवॉइस डेट से काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ओरिजिनल इनवॉइस डेट का क्रेडिट लिया है तो वो ओरिजिनल से काउंट करोगे और अगर डेबिट नोट का ले रहे हो तो डेबिट नोट के डेट से काउंट करोगे। यानी कि जैसे मैंने कहा कि ये डेबिट नोट आपका 21-22 में इशू हुआ है तो आप इसका क्रेडिट 21-22 तक में तो ले ही सकते हैं, साथ में आप नेक्स्ट 22-23 के सितंबर के रिटर्न के ड्यू डेट तक आप क्रेडिट ले सकते हैं। थर्ड है आपको इंश्योर करना है कि आप अपने बैंक पेमेंट कर दे विद इन 180 डेज ऑफ इनवॉइस टू अवेल द क्रेडिट। यानी कि क्या, जब भी आपके पास इनवॉइस आ जाता है आपको इंश्योर करना है 180 डेज। दोस्तों इसमें बहुत ध्यान रखें, काफी लोगों को लगता है 6 महीने में 180 डेज से ऊपर रहते हैं, क्योंकि कुछ आपके 30 डेज रहते हैं, कुछ 31 डेज रहते हैं। उसी तरह अगर मैं फेब को काउंट करूं तो 28 डेज भी हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना 180 डेज है, 6 महीने नहीं। 180 डेज के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। अगर मान लीजिए आपने उसका पेमेंट अपने वेंडर को नहीं किया है तो इन दैट केस रिवर्सल ऑफ क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, यानी जो आपने क्रेडिट लिया था उसे आपको रिवर्स करना होगा, वो भी विथ इंटरेस्ट। फोर्थ पॉइंट है कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन एज वेल एज क्रेडिट। कैपिटल गुड्स जो यानी कि फिक्स्ड एसेट्स जिसको हम कहते हैं, कैपिटल गुड्स इज डिफरेंट एंड फिक्स्ड एसेट इज डिफरेंट। कैपिटल गुड्स को डिफाइन किया गया है जीएसटी लॉ में, वो एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन है तो आप लॉ में देख सकते हैं। काफी सारे कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट में भी क्लासिफाई होते हैं। अगर आपने आईटीसी फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि आपके फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड कर दिया है तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड कर दिया है तो आप गोइंग फॉरवर्ड उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। गवर्नमेंट आपको दो बेनिफिट नहीं देगी, यानी कि आईटीसी पे क्रेडिट भी आप क्लेम कर लो और आईटीसी पे आप डेप्रिसिएशन भी ले लो। दोनों लॉस अलग अलग है बट स्टिल आप बेनिफिट एक ही में ले सकते हैं। तो ये आपको कॉल लेना है कि क्या बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कॉस्ट में ऐड करके डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता हूँ, फ्यूचर ईयर्स में 30% उसके ऊपर टैक्स बचाना चाहता हूँ, तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑल्टरनेटिवली आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। एलिजिबल और इनएलिजिबल क्रेडिट, हम जैसे ऊपर बात कर रहे थे कि आपका क्रेडिट एलिजिबल होना चाहिए, इनएलिजिबल रहा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये अगर आपको ध्यान हो, हमारा एक पॉइंट था, 5th पॉइंट लास्ट, should not be ineligible as per the law।
तो इनएलिजिबल क्रेडिट कौन सा क्रेडिट है ये देखते हैं. फर्स्ट इज मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स having approved sitting capacity of not more than 13%. In not more than 13% अभी recently ऐड किया गया है काफी कुछ पुराने सालों में. इससे पहले ये ओपन था. अगर आप लिस्ट को ध्यान देंगे तो ये समवट हमारे सर्विस टैक्स रेजिम की ही लिस्ट है जो घुमा फिरा के यहाँ पर आई है. मोटर व्हीकल्स आप नहीं ले सकते सब्जेक्ट टू दे यूजिंग फॉर दीज 3. यानी कि क्या मतलब, अगर आप मोटर व्हीकल्स यूज कर रहे हो और ये 3 पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो जो आईटीसी आपको मोटर व्हीकल पे चार्ज हुआ है उसका क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा. फर्स्ट क्या है, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल. यानी कि क्या आपका बिजनेस ही यही है कि आप मोटर व्हीकल परचेज करते हो और सेल करते हो, तो आपको मोटर व्हीकल जो आपने परचेज किया है उसका क्रेडिट मिलेगा. सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. यानी कि आपने जो मोटर व्हीकल यूज किया है, मान लीजिए जैसे बस है या फिर वो का एक बड़ा सा बस जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए यूज होती है, तो आपको मोटर व्हीकल पे क्रेडिट मिलेगा. थर्ड इज इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स. यानी कि आपने मोटर व्हीकल स्कूल ओपन किया हुआ है या ड्राइविंग क्लासेस ओपन की है जहां पर आप ये मोटर व्हीकल यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए. सेकेंड इनएलिजिबल क्रेडिट है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट. वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. हावेवर अगर वेसल्स और एयरक्राफ्ट ये चीजों के लिए यूज होता है तो आपको क्रेडिट मिलेगा. एक है जैसे यही सेम मोटर व्हीकल की तरह फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल्स, यानी कि आप रीसेल कर रहे हैं. सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. थर्ड इज इम्पार्टिंग ट्रेनिंग. ये वेसल के लिए है और ये एयरक्राफ्ट के लिए. तो ये और ये कंडीशन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है. यहाँ एक जो एडिशन है वो है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो मोटर व्हीकल में नहीं है. तो मोटर व्हीकल के लिए अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो अब तो मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन पैसेंजर्स के लिए है, मतलब पैसेंजर्स मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिलेगा. वेरएज जैसे हम वेसल्स और एयरक्राफ्ट पे जा रहे हैं तो यहाँ पर आप पैसेंजर्स कर रहे हो या फिर गुड्स, दोनों ही केसेस में आपको मिलेगा. थर्ड है सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर्स और मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट रिफर्ड अबाउट. यानी कि ये जो दो हमने देखा, मोटर व्हीकल्स और वेसल्स, जो ये एक्सेप्शनल कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे हैं, अगर उनका आप इंश्योरेंस लेते हो या सर्विसिंग करा रहे हो तो उस पे भी जो आईटीसी चार्ज है वो नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज एंड सो ऑन. यानी कि पर्सनल कैटेगरी के सर्विसेज जो आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो. बट अगर आपने वो सेम कैटेगरी का यूज किया हुआ है, यानी कि फूड एंड बेवरेजेस आप इनपुट ले रहे हो और आप आउटपुट भी आपका फूड एंड बेवरेजेस सप्लाई करना ही है, तो आपको क्रेडिट मिलेगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल आउटडोर केटरिंग है, तो आउटडोर केटरिंग एज एन अगर आप फैक्ट्री में अपने ले रहे हो जहां पर कंपलसरी नहीं है ये सर्विस देना, तो इन दैट केस आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन आप मान लीजिए आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि मैं केटरर हूं, मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट किया केटरिंग सर्विस किसी को, थोड़ा बहुत उसका सर्विस है, थोड़ा बहुत मेरा सर्विस है, और मैं फाइनल दोनों मिला के अपने क्लाइंट को ये सर्विस दे रही. तो इन दैट केस जो इनपुट सर्विस मैं रिसीव कर केटरिंग से उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा, एंड जब मैं फाइनल आउटपुट दूंगी मैं ये सर्विस में से माइनस कर सकती हूँ. इसमें भी ये है कि अगर केटरिंग है और अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम में गई हूँ तो मुझे क्रेडिट फिर से नहीं मिलेगा. तो ये इसी तरह से कोई लॉन्ग लिस्ट है, मेंबरशिप क्लब, ट्रैवल बेनिफिट्स, इन शॉर्ट ऑल इन पर्सनल नेचर, जिसका क्रेडिट नहीं मिलता है. आप चाहिए तो मैं स्लाइड रख सकती हूँ थोड़ी देर के लिए आपको अगर पढ़ना हो तो, या फिर आपको आप सेक्शन 17 देख सकते हैं आप CGST एक्ट, जहां पर एक लंबी लिस्ट है कि आप किस चीज का क्रेडिट इनएलिजिबल माना जाता है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, goods received by a non-resident person, personal consumption,
goods lost, stolen, destroyed or written off or disposed of by way of gifts or free sample, उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप दिवाली पे किसी को गिफ्ट कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिनर सेट खरीदा है जिसपे जीएसटी लगा है और वो डिनर सेट आप अपने क्लाइंट्स को दिवाली पे गिफ्ट देना चाहते हो, तो जो आईटीसी आपका डिनर सेट पे है उस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि आईटीसी अवेलेबल कैसे आपको 3B में डिस्क्लोज करना है। तो आप जब आईटीसी चेक कर रहे हो तो फर्स्टली तो आपको देखना है कि टैक्सेबल है कि नहीं है, सेकंड आपको देखना है एलिजिबल है कि नहीं है, थर्ड आपको देखना है वो जो कंडीशंस हमने स्पेसिफाई की थी वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। एक बार ये तीनों चीजें फुलफिल हो रही हैं तो आपको कंपेयर करना है आईटीसी एज पर बुक्स एंड आईटीसी एज पर 2A। As per the recent changes or amendments in the law, आपको ITC as per books और 105% of ITC as per 2A, whichever is lower, उसका क्रेडिट मिलेगा। यानी कि मान लीजिए किसी इनवॉइस का क्रेडिट आपके पास बुक्स में है बट आपके वेंडर ने रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो ऑब्वियसली वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। 2A को अभी 2B से रिप्लेस कर दिया गया है, तो आप अपना 2B चेक करेंगे, आप देखेंगे 2B में है कि नहीं है। अगर मान लीजिए 2B में नहीं है तो एक ऑप्शन ये है कि आप क्रेडिट नहीं लें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो आपका टोटल 2B का क्रेडिट है उसका 105% लें। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो फर्स्ट आप देखोगे टोटल जीएसटी आपका क्या है ऑन प्रोक्योरमेंट में, लेस जो आईटीसी आपका नॉन जीएसटी या एग्जेम्प्ट के लिए यूज होता है आप उसे माइनस कर दोगे। कॉमन आईटीसी भी आप इनएलिजिबल जो है उसको माइनस कर दोगे। आईटीसी इनएलिजिबल, आईटीसी अगेंस्ट व्हिच पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 6 मंथ्स, उसको भी आप माइनस कर दोगे। बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट आपका एज पर बुक्स होगा। ये सारे यूज होना चाहिए। अगर वो नॉन जीएसटी एग्जेम्प्ट या नॉन बिजनेस के लिए है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपको वो ऑटोमेटिकली अपने टोटल क्रेडिट में से माइनस करना है। क्वेश्चंस इफ अगर हम डायरेक्टली लास्ट में ले तो चलेगा, तो किसी को फ्लो नहीं टूटेगा। सेकेंड, कॉमन आईटीसी इनएलिजिबल जो है वो माइनस करना है। आईटीसी इनएलिजिबल यानी कि जो स्पेसिफिकली इनएलिजिबल है उसे माइनस करना है। आईटीसी जिसका पेमेंट आपने 6 महीने में नहीं किया, जैसे मैंने कहा था आपको रिवर्स करना है, तो वो रिवर्स करना है। जो बैलेंस अमाउंट आ जाएगा वो क्रेडिट एज पर बुक्स आ जाएगा, यानी कि ये अमाउंट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल जीएसटी मेरे पास 1000 रुपए, इसमें से मैंने जो भी मेरा इनएलिजिबल क्रेडिट है माइनस कर दिया है, तो मेरा बैलेंस अवेलेबल एज क्रेडिट एज पर बुक्स इज 950। यहाँ पर जब मैं जीएसटीआर 2A को कंपेयर करूंगी, मैं सेम वे वहां पर भी ऐसे ही लूंगी कि जो क्रेडिट मेरा जीएसटीआर 2A में दिख रहा है लेस जितना भी इनएलिजिबल है उसे माइनस कर दूंगी। जरूरी दोस्तों जो 2A या 2B में दिख रहा है वो क्रेडिट एलिजिबल ही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रिपेयर सर्विस ली है, तो रिपेयर सर्विस करते वक्त आपने अपना जीएसटी नंबर अपने वेंडर को दिया, आपके वेंडर ने रिटर्न फाइल करते वक्त जीएसटीआर 1 में शो किया कि उन्होंने ये सर्विस आपको दी है। एज पर लॉ रिपेयर्स ऑफ मोटर व्हीकल इज नॉट अलाउड, तो आपके 2A में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बट आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो, तो आपको 2A के क्रेडिट में से वो माइनस करना है। जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसका 105% कंपेयर करना है। सेम एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, जो हमने आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A भी 1000 रुपीज किया है, लेस हमने बाकी चीजें माइनस की हैं। 910 मेरा अमाउंट आ रहा है और उसके सामने 956, यानी कि 105% ऑफ अमाउंट एज पर 2A करूं तो 956 हो जाता है। अब आईटीसी अवेलेबल कितना होगा मुझे एज पर फॉर द मंथ पे, लोअर ऑफ आईटीसी एज पर बुक्स और 105% ऑफ द अमाउंट एज पर 2A। इन दोनों के हिसाब से जो भी कम रहेगा उसका क्रेडिट मिलेगा, प्लस ऑन इंपोर्ट्स मिलेगा, थर्ड जीएसटी रिसीव्ड फ्रॉम आईएसडी पूरा मिलेगा, फोर्थ जीएसटी पेड ऑन रिवर्स चार्ज पूरा मिलेगा।
बैलेंस जो होगा मतलब ऐड करने के बाद वो होगा मेरा अमाउंट अवेलेबल फॉर द मंथ। इस तरह से मेरा लोअर ऑफ आईटीसी, ये आपको समझा कि आपको 2A से और बुक्स से कंपेयर करना है। जो भी अमाउंट आपका लोअर रहेगा, जैसे अगर मैं ऊपर वाले में देखूं तो 956 और 950 कंपेयर किया जाएगा। 950 जो सबसे कम है मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा, तो यहाँ पर 950 का ऑप्शन आ जाएगा। सेकेंड इज जीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट्स, कुछ अगर रहेगा तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा डायरेक्टली, यानी कि जब मैंने इंपोर्ट किया है, मैंने जो आईजीएसटी पे किया है उसका क्रेडिट मिलेगा। आईएसडी क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट होकर आया है वो मिलेगा, एंड जीएसटी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस उसका क्रेडिट पूरा मिलेगा। So if ITC credit is clear, we go with the next topic on reversal. So any questions related to ITC credit? नहीं तो हम नया next topics अपना start करेंगे कि reversal कैसे करना है common credit पे। I think हमारे पास एक question था, purchaser pays after 180 days to supplier with consent of the vendor, then is so ITC reversal required as per the law? Yes. मतलब अगर आप लोग के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जो क्रेडिट पीरियड आपका है फॉर पेमेंट दैट विल बी मोर देन 180 डेज, मान लीजिए 200 डेज है, तो इन दैट केस अगर आपने फर्स्ट क्रेडिट लिया है आईटीसी का, तो आपको उसे रिवर्स करना होगा, वो भी विथ इंटरेस्ट। एंड जब 200 डे पे आप पेमेंट कर रहे हो तब आप उसका क्रेडिट का रीअवेलमेंट ले सकते हो। आई सजेस्ट इन दिस केस बेटर आप फर्स्ट क्रेडिट मत लीजिए, क्योंकि आपको पता है आप 180 डेज में पेमेंट नहीं करने वाले हैं, तो आपको क्यों रिवर्सल करना है विथ इंटरेस्ट। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट भी लगेगा ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 180 डेज वाला अगर आपको पता ही नहीं है क्रेडिट मत लीजिए, जब आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं 200 डे पे तब क्रेडिट लीजिए। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द ओल्ड टॉपिक? I'm sorry, I'm having a little bit cold. So if I am not clear or something, please let me know. I think I'll go ahead with the second topic, reversal of GST on common credit. अब हमने जैसे पढ़ा था कॉमन क्रेडिट, मैंने जो अपने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, आपको कॉमन क्रेडिट का पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको डिवाइड करना है बिटवीन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सर्विसेज, एग्जेम्प्ट आउटपुट टू बी फ्रैंक। जो भी पोर्शन आपका टैक्सेबल से रिलेटेड है आपको उसी का क्रेडिट मिलेगा। अभी कॉमन क्रेडिट आप कैसे डिराइव करोगे? जो आपका टोटल क्रेडिट है उसमें से आप टैक्सेबल सप्लाईज का माइनस कर दोगे, यानी कि जैसे हमने बोला स्पेसिफिकली जो टैक्सेबल सप्लाईज के सामने है आप उसे माइनस कर दोगे, स्पेसिफिकली जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के सामने है उसे माइनस कर दोगे। थर्ड, स्पेसिफिकली जो नॉन, द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट एंड नॉन जीएसटी। एग्जेम्प्ट मतलब क्या कि वो गवर्नमेंट के किसी नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट है, और नॉन जीएसटी मतलब क्या कि वो जीएसटी नेट के पर्व्यू में ही नहीं आता है। जैसे आप लैंड अगर सेल कर रहे हैं तो लैंड जीएसटी नेट के बाहर है। एग्जेम्प्ट में क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला हमने जम्मू एंड कश्मीर को भी कंसिडर किया है, और जम्मू एंड कश्मीर में अगर एक्स सर्विस दी जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट है बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन। तो एग्जेम्प्ट सर्विस और जीएसटी सर्विस, नॉन जीएसटी आइटम्स में फर्क है। फोर्थ है इनएलिजिबल क्रेडिट, जो आपको माइनस करना है। तो जितना भी टोटल क्रेडिट है, टोटल क्रेडिट कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हमने आपको पहले बताया स्लाइड्स में। आपको टोटल क्रेडिट में से माइनस करना है टैक्सेबल सप्लाईज, exempt supplies, non-GST supplies and ineligible credit. Any questions related to this topic? Assuming no questions, we'll be taking the questions in the later part. क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल सब स्पेसिफिकली टू टैक्सेबल सप्लाई। अब जैसे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो दो प्रोडक्ट्स, एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट। एक्स प्रोडक्ट के लिए
Shilpa ji, चाहिए? you are not audible. Okay. Now I'm audible. Yes, yes. I'll repeat the example again. यहाँ पर आप दो चीज का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट वाई। एक्स के लिए आपको रबर चाहिए, लेबर चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जो वाई प्रोडक्ट है उसके लिए आपको प्लास्टिक चाहिए, लेबर चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तीनों चीज में से अगर आप दोनों जगह देखोगे तो लेबर और इलेक्ट्रिसिटी आपको दोनों जगह चाहिए। तो जो रबर है वो कंप्लीटली एक प्रोडक्ट एक्स के लिए यूज हो रहा है और जो प्लास्टिक है वो कंप्लीटली सेकंड प्रोडक्ट वाई के लिए यूज हो रहा है। जो रबर है वो आप अगर स्पेसिफिकली टैक्सेबल, यानी कि मैं बोलती हूँ मेरा जो एक्स प्रोडक्ट है दैट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, तो रबर का क्रेडिट मुझे कंप्लीटली मिलेगा, उसे मैं कॉमन क्रेडिट में नहीं कंसिडर करूंगी। जैसे ये कहा है ना, टोटल क्रेडिट माइनस स्पेसिफिकली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। तो जो मेरा टोटल क्रेडिट है, यानी कि जो क्रेडिट मुझे मिला है रबर से, प्लास्टिक से, लेबर से और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तो जीएसटी चार्ज नहीं होता है, तो ये तीन आइटम से मुझे जो क्रेडिट मिला है स्पेसिफिकली, उसमें से मैं रबर का क्रेडिट माइनस कर दूंगी, क्योंकि रबर का क्रेडिट मुझे पता है कि मुझे शॉर्ट मिलने वाला है, क्योंकि उससे जो आउटपुट बना है वो टैक्सेबल है। सेकेंड आ जाता है क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल स्पेसिफिकली टू एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी कि एक क्रेडिट जो एग्जेम्प्ट के लिए यूज है। अब यहाँ पर मेरा वाई प्रोडक्ट जो है वो एग्जेम्प्ट है, एक्स जिसमें रबर यूज हो रहा था वो टैक्सेबल है और वाई जिसमें प्लास्टिक यूज हो रहा है वो एग्जेम्प्ट है। तो जो वो प्लास्टिक का क्रेडिट है जो स्पेसिफिकली मेरा वाई में ही जा रहा है, उसका एक्स से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वाई का जितना भी मैंने आईटीसी पे किया है मुझे उसे अप फ्रंट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अप फ्रंट मेरा कॉस्ट बन जाएगा। थर्ड आ जाता है क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल स्पेसिफिकली टू नॉन जीएसटी सप्लाई। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिकली केस आता है आपका तो आपको वो भी माइनस करना है। एंड फोर्थ आता है इनएलिजिबल क्रेडिट, यानी कि आपने मान लीजिए लेबर का जो सर्विस लिया था उसका बिल ही नहीं मिला है आपको, या फिर आपके वेंडर ने अपने जीएसटी रिटर्न में उसे दिखाया नहीं, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा। टोटल क्रेडिट में से आपको ये चार चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। बैलेंस जो बचेगा आपका कॉमन क्रेडिट होगा। जैसे अभी हमारे केस में हम देखेंगे, हमारे पास कॉमन क्रेडिट है लेबर का। लेबर जो यूज हुआ है एक्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एज वेल एज वाई। ये लेबर का जो क्रेडिट है आप इसको बाइफर्केट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब आपने सप्लाई ऑफ लेबर लिया आपने तो होलसम बेसिस पे लिया है कि ये जो मेरे पास मजदूर है सप्लाई कर रहे हो वो ही मेरे एक्स प्रोडक्ट के लिए भी काम करेंगे, वो ही मेरे वाई प्रोडक्ट के लिए भी काम करेंगे, कोई बाइफर्केशन नहीं है, वो इन दैट केस मेरा कॉमन क्रेडिट बन जाता है। उसके अलावा मान लीजिए आपने अपने फर्म को ऑडिट कराया, ऑडिट एक बहुत कॉमन सर्विस है, बट अगर वो यूज हो रही है दोनों टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट के लिए तो कॉमन क्रेडिट में कंसिडर की जाएगी, क्योंकि आप बाइफर्केट करके ऑडिट नहीं कर रहे कि मैं एक्स का ऑडिट कर रहा हूँ या मैं वाई को ऑडिट कर रहा हूँ, आप तो पूरा फर्म का ओवरऑल ऑडिट कर रहे हैं। तो इन दैट केस वो भी कॉमन क्रेडिट में गिना जाएगा। सिक्योरिटी सर्विसेज, मान लीजिए एक ही फैक्ट्री में आपका एक साइड पे एक्स बन रहा है और एक साइड पे वाई बन रहा है, उस फैक्ट्री का जो चौकीदार है वो एक ही है, वो ऐसा तो नहीं है कि एक्स का ही चौकीदारी कर रहा है या वाई का ही चौकीदारी कर रहा है, वो तो पूरे फैक्ट्री का चौकीदारी कर रहा है, कॉमन क्रेडिट में कंसिडर किया जाएगा। सॉरी तुम्हारे के पास जैसे एग्जाम्पल्स हमने दिए, आपको वो कॉमन क्रेडिट अलग करना है। कॉमन क्रेडिट मैं बोल सकती हूँ टोटल पूल में से भी आप अलग कर सकते हो, या फिर एक एक सर्विस आइडेंटिफाई करके भी अलग कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। कॉमन पूल में क्रेडिट
माइनस करना इज अ मोर बेटर वे rather than identifying individual common services, because ऐसी हो सकती है जो आपकी एक्चुअली में कॉमन सर्विस हो, लेकिन क्योंकि आप स्पेसिफिकली बाइफरकेट करके एक कॉमन सर्विस उठा रहे हैं, आप मिस कर दे वो सर्विस। कॉमन क्रेडिट जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए यूज होगा। अब देखते हैं कि आपको रिवर्सल कैसे करना है। तो कॉमन क्रेडिट जो टैक्सेबल के सामने रहेगा वो तो आपको पूरा मिलेगा, बट आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि एग्जेम्प्ट सप्लाई के सामने कितना है, नॉन जीएसटी सप्लाई के सामने कितना है और टैक्सेबल के सामने कितना है। क्या आउटपुट ऑप्शन हो सकते हैं, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल या फिर नॉन जीएसटी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन क्रेडिट कितना हुआ, जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। इसमें से जो टैक्सेबल के सामने वो पूरा मिलेगा, बट वो कैसे पता चलेगा कि टैक्सेबल के सामने कितना है। तो कॉमन क्रेडिट में से जो पोर्शन एग्जेम्प्ट सप्लाई के सामने है उसे हम माइनस कर देंगे, जो पोर्शन नॉन जीएसटी सप्लाई के सामने है हम उसे भी माइनस कर देंगे। बैलेंस जो क्रेडिट हमारे पास बचा उसे हम कॉमन क्रेडिट करेंगे, जो टैक्सेबल सप्लाई के सामने यूज हुआ है। कॉमन क्रेडिट को अगर मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई के सामने यूज करने जाऊं तो मतलब मुझे एक फॉर्मूला लगाना होगा। ऐसा नहीं है मैं अपने मन मर्जी के हिसाब से लगा सकती हूँ। मुझे एग्जेम्प्ट सप्लाई का अगर प्रपोर्शन देखना है तो मैं देखूंगी कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जेम्प्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। यानी कि मेरा ये केस में जो मैंने एग्जांपल दिया, जो मेरा टोटल टर्नओवर यानी कि एक्स और वाई का मिला के वो यहाँ नीचे आ जाएगा, और y जो मेरा स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट है वो यहाँ एग्जेम्प्ट टर्नओवर में आ जाएगा। तो कॉमन क्रेडिट इन प्रपोर्शन टू टर्नओवर ऑफ y अपॉन टोटल टर्नओवर ऑफ x प्लस y विल बी माय कॉमन क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज। यानी कि कॉमन क्रेडिट को अगर मुझे एग्जेम्प्ट सप्लाई के प्रपोर्शन में करना है, मुझे एक रेशियो निकालना होगा एग्जेम्प्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। जो रेशियो आएगा उसको मुझे कॉमन क्रेडिट से मल्टीप्लाई करना है, एंड वो जो अमाउंट आएगा वो होगा कॉमन क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज। मुझे ये टोटल कॉमन क्रेडिट में से माइनस कर देना है। अगर नॉन जीएसटी सप्लाईज भी है मेरे पास, तो नॉन जीएसटी सप्लाईज के लिए मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे डायरेक्टली 5% को निकाल देना है नॉन जीएसटी सप्लाईज के लिए, इररिस्पेक्टिव आपका नॉन जीएसटी सप्लाई 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर हो या 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर। तो यहाँ पर अपफ्रंट उन्होंने 5% का कैप रख दिया। आपको 5 कैप नहीं, आपको 5% ही करना है। 1 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, मैटर नहीं करेगा। आपका कॉमन क्रेडिट का 5% आपको माइनस कर देना है। यहाँ आपको एक रेशियो मिलेगा, वो रेशियो ढूंढना है। यहाँ पर रेशियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, 5% अपफ्रंट आपको माइनस कर देना। तो अगर मैं अब देखूं, मैंने ये एक एग्जांपल बनाया। टैक्सेबल टर्नओवर फॉर द मंथ मेरा 1,10,000 रुपीज है, उसमें एग्जेम्प्ट टर्नओवर 2,000 है, एंड नॉन बिजनेस टर्नओवर यानी कि नॉन जीएसटी टर्नओवर मेरा 1,500 रुपए। मेरा टोटल टर्नओवर 13,500 है। अब मैं यहाँ से या तो जैसे मैंने आपको बोला मैं कॉमन क्रेडिट ही ले लूं 8,000 रुपीज का, या फिर मैं पूल में से यानी कि 8,950 में से सब चीजें माइनस करती जाऊं और 8,000 पे फिगर पे। ये एग्जांपल आप एक बार देख सकते हैं। $8,950 में से अगर मैं 500, 100, 150 और 200 को माइनस करूं तो भी मुझे 8,000 का फिगर आएगा। या मैं डायरेक्टली कॉमन क्रेडिट जो मुझे पता है मैं उसी का वैल्यू ले लूं जो कि अगेन 8,000 रुपीज है। अगर मान लीजिए मेरे पास कॉमन क्रेडिट नहीं है तो मुझे टोटल क्रेडिट में से ये माइनस करना है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कॉमन क्रेडिट आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कॉमन क्रेडिट है ये यूज हुआ है टैक्सेबल टर्नओवर के सामने, प्लस एग्जेम्प्ट टर्नओवर के सामने, और थर्ड नॉन बिजनेस टर्नओवर के सामने।
अगर अब मुझे चाहिए कि मुझे कितना कॉमन क्रेडिट मिलेगा, जनरली काफी लोग गड़बड़ कर देते हैं, 8,000 रुपए पूरा ले लेते हैं। आप 8,000 के लिए पूरा एलिजिबल नहीं हो। आपको ये बात समझनी होगी कि कॉमन क्रेडिट जो है उसका सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन के सामने जितना यूज हुआ है आप उसका क्रेडिट ही ले सकते हैं। जो एग्जेम्प्ट और नॉन बिजनेस के सामने जैसे हमने जो रेशियो देखा है वो कैलकुलेट करके आपको उतना माइनस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप माइनस नहीं करते हैं एंड आपके यहाँ ऑडिट होता है तो आपके ऑडिटर्स उसे माइनस कराएंगे और तब आपको पेमेंट करना होगा विद इंटरेस्ट, क्योंकि तब आप रिवर्सल कर रहे हो। जो क्रेडिट आपका था ही नहीं आप उससे कैसे क्रेडिट ले सकते हो? भले आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, इनवॉइस मिला है आपको, सर्विसेज एक्चुअली यूज हुई है, वेंडर ने भी दिखाया है, एलिजिबल भी है, बट अगर कॉमन क्रेडिट है तो टैक्सेबल के प्रपोर्शन में ही आपको क्रेडिट मिल सकता है। फॉर्मूला ऊपर वाला ही हम लगाते हैं जो हमने सीखा है अभी। कॉमन क्रेडिट एलिजिबल एग्जाम सप्लाई के सामने मेरा जो एग्जाम टर्नओवर है अपॉन टोटल टर्नओवर, यानी कि ये जो 8,000 रुपए है, मैं एग्जाम टर्नओवर मेरा 2,000 रुपए है, उसे मैं डिवाइड करूंगी 13,500 से, तो मेरे पास एक फिगर आ गया है 1185 का। ये मेरा एग्जाम टर्नओवर है कंपेयर टू माय टोटल टर्नओवर। तो 8,000 रुपए जो मेरा कॉमन क्रेडिट है उसको मुझे एग्जाम सप्लाई के सामने एट्रीब्यूट करना है, जो है 2,000 डिवाइडेड बाय 13,500 और 1185 का क्रेडिट मुझे मिलेगा फाइनली। सॉरी 1185 मेरा क्रेडिट है जो मेरा एग्जाम सप्लाई के सामने एट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 8,000 में से मुझे 1185 माइनस करना है। सेकेंड है मेरा नॉन जीएसटी सप्लाई, यानी कि 5% ऑफ द कॉमन क्रेडिट। जैसे कि मैंने आपको कहा था यहाँ पर कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉन जीएसटी सप्लाई दे रहे हो, जैसे यहाँ देखिए हमारे पास नॉन बिजनेस टर्नओवर है जो 1,500 रुपए है, अगर आप वो दे रहे हो तो डायरेक्टली 5% ऑफ द कॉमन क्रेडिट जो हमारा यहाँ था 8,000 रुपए, उसका 5% मुझे माइनस कर देना है, यानी कि ये 400 रुपीज मेरा क्रेडिट एट्रीब्यूट हो जाएगा नॉन जीएसटी सप्लाईज के लिए। तो अब मुझे टोटल कॉमन क्रेडिट में से यानी कि 8,000 रुपए में से 1185 माइनस करना है और 400 माइनस करना है, बैलेंस 6415 मेरा कॉमन क्रेडिट है एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज। अब मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा। तो एक बार आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को वापस देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टर्नओवर रिलेटेड डिटेल्स हैं और ये आईटी से रिलेटेड डिटेल्स हैं। इसे मैंने फॉर्मूला लगा के एग्जाम्प्ट और नॉन जीएसटी के सामने एट्रीब्यूट किया है। एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला लिया है और नॉन जीएसटी के लिए ये फॉर्मूला लिया है। दोनों ही केसेस में कॉमन क्रेडिट जो एग्जाम सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई के लिए है उसे मैंने माइनस कर दिया मेरे टोटल कॉमन क्रेडिट में से, और बैलेंस जो मेरा क्रेडिट है दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज। should I go ahead with the example? Let मैं आगे का पार्ट बताऊं। अगर एग्जाम्पल समझ गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉमन क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करते हो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे भी काम आएगा आपको। तो अगर ये फॉर्मूला बराबर समझ जाए तो ही हम आगे बढ़ेंगे। You can write down in the chat box कि आपको समझा है कि नहीं।
Dharmishta has written he has spotted, thanks. I assume everyone else has also got it because there is no reward. अभी कॉमन क्रेडिट जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको क्या पॉइंट्स पे ध्यान देना है? एक, आपको ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना है, यानी कि ऐसा नहीं अभी मैं कॉमन क्रेडिट लेती गई और फिर ईयर एंड आया फिर ये कैलकुलेशन किया एंड फिर जितना कॉमन क्रेडिट रिवर्स करना है रिवर्स किया, नहीं, आपको ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन करना है। यानी कि अगर अगर आपको पता है कि आपका आउटपुट जो है वो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट है, या फिर टैक्स बिजनेस पर्पस और नॉन बिजनेस पर्पस, या जीएसटी और नॉन जीएसटी आइटम है, तो आपको ये कैलकुलेशन राइट फ्रॉम स्टार्टिंग मंथली बेसिस पे करना है। अगर मान लीजिए ऐसा सिनेरियो आता है जब भी उस मंथ में आपके पास सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज है या फिर सिर्फ एग्जाम सप्लाई है, तो आप बोलोगे मेरे पास तो डेटा ही नहीं है, क्या मैं सारा क्रेडिट रिवर्स कर दूं? जैसे मान लीजिए लॉकडाउन के टाइम पे आपने जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर दोनों किए, हमारा जैसे एग्जांपल चल रहा था एक्स और वाई दोनों मैन्युफैक्चर किए, लेकिन मान लीजिए एक्स को अलाउ ही नहीं किया फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए और वाई का सप्लाई चलता जा रहा है। इन दैट केस आपके पास शायद डेटा ही नहीं हो कि आप कितना एक्स को एट्रीब्यूट करें कितना वाई को एट्रीब्यूट करें। तो इन दैट केस आप प्रीवियस पीरियड आपके लिए कोई भी हो सकता है, प्रीवियस मंथ या फिर प्रीवियस ईयर, जहां पर भी लास्ट आपके पास टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट था, आप वो डेटा ले सकते हैं एज बेसिस। ये जो आप कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे करेंगे वो एक एस्टिमेट बेसिस होगा जिस पे आप क्रेडिट लेंगे। आपको ईयर एंड होने पर वापस से इसे कैलकुलेट करना है बेसिस द एक्चुअल डेटा फॉर दैट एंटायर ईयर। तो ये जो हमने एक्सरसाइज किया है अभी, ये आपको 12 बार यानी कि मंथ्स में हर महीने में 12 बार तो करनी है, हर एक मंथ में एक बार, साथ में आपको ये ईयर एंड पे भी करना है, यानी कि जब पूरा ईयर खत्म हो जाता है तब वापस एक बार करना है विद एक्चुअल डेटा। मंथली बेसिस जैसे मैं बोल रही हूँ आपको प्रोविजनल डेटा जो भी आपका है, कि हो सकता है कुछ महीने में एक्स बढ़ जाए, कुछ महीने में वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाए, ऐसा तो होगा नहीं कि कभी दोनों का रेशियो इक्वल हो, या फिर जैसे हमारे पास डेटा ही नहीं है जहां प्रीवियस पीरियड का ले रहे हो, तो इन दैट केस जरूरी नहीं कि वही सेम डेटा पूरे साल भर रहे। क्या पता साल भर में ऐसा भी हो सकता है जब आपका सीजन टाइम हो, एक्स का डिमांड बहुत बढ़ जाए और बहुत ज्यादा एक्स हो रहा है तो आपको ज्यादा क्रेडिट मिल जाए, वहीं वाई का सीजन आए तो वाई का क्रेडिट मिल जाए। तो ये जो होगा वो प्रोविजनल बेसिस पे होगा, आपको उसको रिकैलकुलेट करना है। I'm sorry, मेरे को थोड़ा कफ एंड कोल्ड हो रहा है, जिससे मुझे बोलने पे थोड़ी तकलीफ हो रही है। I'll just take a 5 minutes break. Yeah, sure, Shilpa ji, we can take.
Shilpa ji, please unmute yourself. I'm audible now? Yes, are you okay? Yeah, a little bit cough and cold now. So continuous बात करते करते थोड़ा हो गया. No problem. ओके सो वीवर की ये जो मंथली बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, हम प्रोविजनल बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे. एंड जब ईयर एंड होगा आपको ये चीज वापस से कैलकुलेट करनी है बेसिस योर एक्चुअल डेटा. अब आप बोलोगे यार शिल्पा 31 मार्च को तो ईयर एंड हो जाता है, कौन सा 31 मार्च को हमारे पास एक्चुअल डेटा आता है? इनफैक्ट कितनी बार तो सितंबर तक नहीं आता है. तो इन दैट केस गवर्नमेंट ने आपको लेवरेज दिया है. ये जो डेटा आपको रिकम्प्यूट करना है आप लेटेस्ट बाय सितंबर कर सकते हो फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. यानी कि अब जब ये सितंबर शुरू हो चुका है और खत्म होने आया है तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 का डेटा रिकैलकुलेट करना है. जो आपने मंथली बेसिस पे जो प्रोविजनल दिखाया था आपको वो फुल एक्चुअल डेटा के बेसिस पे रिकैलकुलेट करना है. एंड जो अपने सितंबर की रिटर्न है जो GSTR 3B है आप उसमें शो कर सकते हैं या फिर DRC 03 जो चालान है आप उसमें से क्रेडिट के थ्रू एक रिटर्न है जहां पर आप एडजस्ट कर सकते हैं अपना क्रेडिट, उसके थ्रू अपना क्रेडिट माइनस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने मंथली बेसिस पे क्रेडिट कंप्यूट किया एंड टोटल कॉमन क्रेडिट जो आपने साल भर में लिया है वो है 10 लाख रुपीस. जो मैं ये कॉमन क्रेडिट बोल रही हूँ ये टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है. आपने 10 लाख रुपीस लिया, यही चीज आपको साल खत्म होने पर कैलकुलेट की तो पता चला कि नहीं यार 10 लाख रुपीस नहीं 12 लाख रुपीस था, 2 लाख रुपए आपका मिस हो गया. आपको ये क्रेडिट सितंबर के 3B रिटर्न में ले लेना है ज्यादा से ज्यादा.
ज्यादा से ज्यादा जब मैं बोल रही हूँ, यानी कि अप्रैल टू सितंबर आपको जो भी रिटर्न का क्राइटेरिया आएगा, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप इनमें से किसी में भी ले सकते हैं, बट लेटेस्ट बाय सितंबर लेना है। मान लीजिए उल्टा, अगर आपका क्रेडिट 10 लाख रुपीज आपने लिया है और एक्चुअली में 8 लाख रुपीज ही एलिजिबल था, तो ये 2 लाख रुपीज आपने एक्सेस ले लिया है, आपको इसे रिवर्स करना होगा विथ इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, यानी कि 2021 का, जहां आपको 31 मार्च पे करना था और 1 अप्रैल पे ये रिवर्स करना था। आपने 1 अप्रैल पे अगर रिवर्स नहीं किया, आपने 30 सितंबर को रिवर्स किया, तो जो 2 लाख रुपए है उसके आपको इंटरेस्ट पे करना होगा फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। गवर्नमेंट बोलता है मैंने आपको डेट तो एक्सटेंड करके दे दी सितंबर, लेकिन ये मेरा लॉस है, आपने एक्स्ट्रा ले लिया मेरे से, आपको इस पे इंटरेस्ट पे करना होगा एट 18%। अब आप बोलोगे उल्टा भी था शिल्पा, 12 लाख रुपए लेना था और मैंने 10 लाख रुपए लिया, 2 लाख रुपए मेरा लॉस हुआ। तो गवर्नमेंट बोलते हैं इस केस में आपका लॉस है, आपको ऑप्शन दिया था कि आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 31 मार्च को ही कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपने डिले किया है, मार्च के बदले सितंबर तक गए हुआ, तो इन दैट केस आपका लॉस है, आपको इंटरेस्ट के ऊपर या इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिले। उसमें भी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि अगर सितंबर तक आपका क्रेडिट नहीं लेते हो आप, तो वो क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। तो आपको इंश्योर करना है कि सितंबर वाले रिटर्न में आप ये क्रेडिट लेंगे। अगर मान लीजिए पेमेंट करना है तो आप 3B में से माइनस कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट लेजर में अगर वो अमाउंट बड़ा है तो आप DRC 03 के थ्रू उसको एडजस्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के पास हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कोई चीज 3B में शो करनी चाहिए या DRC 03 के थ्रू पेमेंट करनी चाहिए। एज अ पर्सनल व्यू मैं बोलूंगी इट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू वांट टू कीप योर बुक्स ऑफ अकाउंट। 17-18 में हमने जब शुरू किया था GST काफी नया था, इट्स अ न्यू बेबी। लोग अपना समझते समझते 18-19 में पहुंचे, 18-19 में भी अपने हिसाब से किया, क्योंकि खुद गवर्नमेंट क्लियर नहीं थी लॉ के साथ। काफी सारे चेंजेस आए लॉ के अंदर, धीरे धीरे जो भी हर्डल्स आए उनको जवाब दिया गया या फिर उनको केटर आउट किया, उनके लिए लॉज बने, बट अभी भी क्लैरिटी काफी पॉइंट्स पे नहीं। तो आपको डिसाइड करना है आपको अपनी 3B के थ्रू पेमेंट करना है या DRC 03 के थ्रू। कुछ लोगों का ये स्टैंड रहता है कि जब हम करंट ईयर का 3B रिको करने जाएंगे हमें हमेशा ये डिफरेंस दिखेगा, जो ईयर ऑन ईयर चलता रहेगा अगर हम ये स्टैंड ले रहे हैं तो, यानी कि अपने 3B में से माइनस कर दें। रिको जब मैं बोल रही हूँ मतलब क्रेडिट एज पर बुक्स एंड क्रेडिट एज पर 3B। अगर ये मैं रिको करने जाती हूँ तो मेरे बुक्स के हिसाब से ज्यादा क्रेडिट है और मेरे 3B के हिसाब से कम। रीजन भी ये जो कॉमन क्रेडिट है जो मेरे को रिवर्स करना है, मैंने उसे 3B में रिवर्स किया है, यहाँ हमेशा डिफरेंस रहेगा जिसके लिए मुझे रिको रेडी रखना पड़ेगा। तो मैं क्यों ये 3B ऑप्शन लूं, मैं क्यों ना DRC 03 ऑप्शन लूं। DRC 03 क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट है उसमें से ये माइनस कर देगा क्रेडिट। आप जब DRC 03 भरते हैं आपको वहां ऑप्शन दिया जाता है कि आपको पेमेंट करना है बाय वे ऑफ कैश और क्रेडिट। अगर मान लीजिए क्रेडिट नहीं है तो आपको कैश पेमेंट करना होगा, अगर क्रेडिट है तो आप क्रेडिट से एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस इंटरेस्ट पेमेंट जो आपने किया है कैश में, आप उसे भी DRC 03 में एडजस्ट कर सकते हैं और वो DRC 03 में ही रहेगा, आपके 3B पे इफेक्ट नहीं होगा। अब काफी लोग जब एनुअल रिटर्न कर रहे हैं उन्हें हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि क्यों मेरा क्रेडिट एज पर 3B और एज पर बुक्स अलग अलग है। जब रिको करते हैं तब ध्यान आता है अरे यार सितंबर में ये रिवर्सल किया था तो सितंबर का क्रेडिट माइनस किया हमने, बुक्स में तो ये माइनस नहीं किया है क्योंकि बुक्स में तो हमने फुल क्रेडिट लिया है, या बुक्स में हमने कोई और ईयर में किया है 31 मार्च में ही कर लिया है क्योंकि ऑडिटर ने बोला है कि भाई पिछले साल का क्रेडिट है 31 मार्च में ये इफेक्ट देना है, और 3B में हमने करंट ईयर में दिया है। ऑलरेडी 10,000 रीजंस होते हैं हमारे बुक्स और 3B के डिफरेंस के, उसमें भी मैं एक और डिफरेंस ऐड कर दूं। तो वो आपके ऊपर है कि अगर आपको 3B में दिखाना है तो 3B में दिखाइए,
नहीं तो आप DRC 03 के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन। इंटरेस्ट लगेगा अगर आपने एक्सेस क्रेडिट ले लिया है तो, शॉर्ट क्रेडिट पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने शॉर्ट क्रेडिट लिया है तो आई वुड सजेस्ट जल्द से जल्द रिकैलकुलेट कीजिए और जो भी आपका क्रेडिट शॉर्ट पड़ता है, मतलब जो शॉर्ट लिया है उसे रीअवेल कर लीजिए। वहीं अगर ज्यादा ले लिया है तो भी जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि बिना बात के आप इस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 18%। रियल एस्टेट के लिए ये फॉर्मूला नहीं है जो हमने ऊपर दिया है। रियल एस्टेट एक अलग ही चैप्टर है जहां पर लैंड होता है, कुछ फ्लैट्स होते हैं जो सेल होते हैं उसी से पहले, कुछ नहीं होते उसी के बाद। अभी काफी जगह पे ये क्रेडिट ऑप्शन बंद हो गया है क्योंकि काफी लोगों ने जो न्यू स्कीम आई है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए वो ऑप्ट करते हैं, जहां पर वो 5% विदाउट ITC या फिर 1% विदाउट ITC में जा रहे हैं। सेम वे बैंक्स के लिए भी अलग है, क्योंकि बैंक्स का जो क्रेडिट होता है वो बहुत छोटा अमाउंट का होता है। वॉल्यूम में वो बहुत ज्यादा होता है लेकिन अमाउंट वाइज बहुत छोटा होता है। तो उनके पास ये ऑप्शन है कि जो भी टोटल कॉमन क्रेडिट है उसका वो 50% क्रेडिट ले ले और बाकी लैप्स कर दे। तो ये जो हमने फॉर्मूला ये देखा है ये रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं चलेगा एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में भी नहीं चलेगा। अगर आपका क्लाइंट रियल एस्टेट में है तो आपको चेक करना है कि वो आउटपुट पे कैसे टैक्स पे कर रहे हैं। 1% और 5% जो ऑप्शन है जो रिसेंट लॉ के हिसाब से है, 1% और 5% में विदाउट ITC है तो आपको वैसे भी ITC नहीं मिलना है, तो एक कॉमन का तो देखने का सवाल ही नहीं होता। अगर मान लीजिए वो 12% में आते हैं यानी कि कंप्लीटली कमर्शियल फ्लैट सेल कर रहे हैं, तो आप फिर आपको डिवाइड करना होगा बिटवीन कमर्शियल प्रॉपर्टी सोल्ड बिफोर OC एंड आफ्टर OC। आपका आफ्टर OC एग्जेम्प्ट अप्लाई होगा और बिफोर OC टैक्सेबल वाला होगा, यानी कि जिसपे आप GST लगा रहे हो वो टैक्सेबल। उसमें भी आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर सप्लाई ऑफ फ्लैट प्लस लैंड के लिए है तो लैंड को अलग से नॉन GST में कंसिडर कीजिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए फिर से ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जो कॉमन क्रेडिट आ रहा है यानी कि यहाँ पर जो हमारा आया था इसका 50% ले लीजिए, यानी कि 8,000 का 50% 4,000 क्रेडिट ले लीजिए और 4,000 बचा कुचा जो उसको भूल जाइए, कैपिटलाइज कर दीजिए अपने बुक्स में। So I'm done most probably with this topic. अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज मुझे बताइए, नहीं तो फिर हम आगे दूसरा कवर कर सकते हैं। Any questions? Shilpa ji, we have one question. Is any form to be filed when we reverse GST credit on year end? So I think you are considering this जो मेरा यहाँ पर हम रिवर्सल के लिए बात कर रहे हैं, करेक्ट? वो वाले के लिए वो फॉर्म पूछ रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ नो फॉर्म इज प्रिस्क्राइब। आपको खुद ही अपने यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी है, खुद ही उसका बेसिस रखना है वर्किंग का एंड खुद ही वो अपने 3B या फिर DRC 03 में रिफ्लेक्ट करना है। आपको कोई अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। सर्विस टैक्स लॉ में होता था जहाँ ये सेम कॉमन क्रेडिट का मैकेनिज्म था, आपको डिवाइड करना पड़ता था क्रेडिट बिटवीन कॉमन एंड टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सर्विसेज। आपको उसके लिए सेपरेटली मंथ, जैसे ये हम कर रहे हैं मंथली एक प्रोविजनल बेसिस पे करते थे, ईयर एंड पे वापस से रिकैलकुलेट करके एक फॉर्म भरना पड़ता था और अपने सर्विस टैक्स ऑफिसर को सबमिट करना पड़ता था। GST में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने 3B या फिर DRC 03 में उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बट वर्किंग अपने पास रखिए ताकि कल को अगर फ्यूचर में आपके ऑफिसर GST ऑफिसर आते हैं या फिर आपके ऑडिटर्स आते हैं असेसमेंट करने के लिए,
तो आपके पास वो वर्किंग रहेगी एज सपोर्टिंग, जो बताएगी कि किस तरीके से आपने ये क्रेडिट लिया है या फिर ये क्रेडिट को रिवर्स किया है। Any other questions? Members. I'm getting some questions on my personal chats also. I think from the members जिनके पास मेरा नंबर है, वो उन्होंने कुछ मुझे मेरे पर्सनल चैट पे लिखे हैं. तो रितु, कैन आई टेक दोस क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Sure. तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है रिलेटेड टू मोटर कार. उनका ये क्वेश्चन है कि मोटर कार पे मैं कब क्रेडिट ले सकता हूँ और कब क्रेडिट नहीं. I'll go back to the slide of ineligible credit. यहाँ मोटर कार पे, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, यानी कि आपकी कार, आपकी बस, ट्रक, जो भी आप पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है. ट्रक मतलब वो टेम्पो जिसमें पता है अगर आप अभी भी इंटीरियर जा रहे हैं तो सामान के बदले आपको इंसान दिखेंगे वहां पर, जो वो पीछे बैठ के जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन एक एरिया से दूसरे एरिया. एनी मोटर व्हीकल which is used for transportation of persons and having approved sitting capacity of not more than 13%, including the driver. यानी कि मैक्सिमम 13 लोग उसमें बैठ सकते हैं, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो मान लीजिए अगर आप छोटी सी कार लेते हैं तो आपको जो क्रेडिट मिल सकता है क्योंकि आप इसमें नहीं आ रहे हैं. जो कार है उसमें नॉट मोर देन 13%, यानी कि 4% लोगों की कैपेसिटी है, तो आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए यूज कर रहे हो वो कार, प्लस उसमें अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 4 लोगों की है, यानी कि ये नॉट मोर देन 13%, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. वहीं आप एक बस ले रहे हैं, बस में मान लीजिए इट्स 15 सीटर बस, तो 15 सीटर बस जो है यहाँ पर उसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13%, तो आपको वो बस का क्रेडिट मिलेगा. वहीं अगर मैं बोलती हूँ कि छोटी बस, वो क्या बोलते हैं उसे, नैनो बस, या फिर वो एक छोटी बस आती है टेम्पो टाइप सी, टेम्पो ट्रैवलर जिसको हम बोलते हैं, उसमें तकरीबन आप 8 से 10 लोग बैठ सकते हैं. अब अगर मैं लॉ के हिसाब से देखने जाऊं तो ये मोटर व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है, इसकी सिटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% की है, तो एज पर द लॉ नहीं मिलेगा. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है. एक्सेप्शन ये है व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फॉरेन टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. तो अगर ये आपने टेम्पो ट्रैवलर खरीदा है आपने पैसेंजर्स को ट्रैवल सर्विस देने के लिए, यानी कि उसे भाड़े पे देने के लिए, तो आपका मोटर व्हीकल का क्रेडिट आपको मिलेगा. अगर मान लीजिए सिर्फ अपने आपकी बड़ी जॉइंट फैमिली है और उसके लिए आपने ये लिया है, जैसे कभी कोई पिकनिक जा रहे हैं, तो आपको वो नहीं मिलेगा. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. जो भी मुझे पर्सनल चैट पे लिखते जा रहे हैं, आप यहाँ पर भी हैं तो आप मुझे यहाँ पर भी बता सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं लग रहा हो. शिल्पा जी, एक क्वेश्चन आया है, कैन वी टेक द क्रेडिट ऑन 2 व्हीलर्स इफ वी यूज फॉर बिजनेस पर्पस? 2 व्हीलर जो आप बोल रहे हैं, आपकी उसकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल्स के लिए यूज कर रहे हैं, सिटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13%, यानी कि 2 पर्सन के लिए ही है, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले आप बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए. आप अगर उसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हो, यानी कि आपका काम ही यही है कि आप एक जगह से पिकअप करके दूसरे जगह पे ड्रॉप कर रहे हो, जैसे ओला मान लीजिए, ओला ने अपना मॉडल चेंज कर दिया, अब कार के बदले वो आपको 2 व्हीलर पे भी सर्विस दे रही है, आपको भाईंदर से पिकअप करके अंधेरी दे रही है, तो इस केस में वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस दे रही है, आपको क्रेडिट मिलेगा. लेकिन यहाँ आपके केस में अगर आप सिर्फ उसे अपने ही घर से ऑफिस जाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस नहीं दे रहे, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. मुझे ये सेम क्वेश्चन 4 व्हीलर के लिए भी आया है,
तो 4 व्हीलर के लिए भी सेम जवाब रहेगा, वेयर इट इज नॉट मोर देन 13%, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा अनलेस अंटिल यू आर यूजिंग इट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, और या फिर ड्राइविंग ट्रेनिंग देने के लिए, या फिर आप उसे फर्दर सेल कर रहे हो। एक क्वेश्चन आया, कैन बी गेट ITC फॉर व्हीकल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स? यहाँ पर देखो, जब मैं आपको बता रही थी, तो अगर आपने ध्यान दिया हो कि व्हीकल में जो एक्सेप्शन कवर हुआ है वो है फर्दर सप्लाई के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए। यहाँ पर कहीं पर भी गुड्स को कवर नहीं किया है, गुड्स के लिए किया है, और आप इस कैटेगरी में फॉल हो रहे हो, यानी कि सिटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन लिखा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए आपने वो गाड़ी खरीदी है तो आपको नहीं मिलेगा। Another question, if we hire bus for pickup and drop of our employee due to I did not get your question. Yeah, if we hire bus for pick and drop of our employees due to train not operating in COVID situation, GST credit can be availed? तो आप यहाँ नहीं आ रहे कि यहाँ पर आप मोटर व्हीकल नहीं सर्विस ले रहे हो, आप रेंट कैब सर्विस ले रहे हो या रेंट व्हीकल सर्विस ले रहे हो। आप एक मिनट, आप यहाँ आ जाओगे, इस कंडीशन में आ जाओगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्लियरली, फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसमें फूड्स कवर किया है, आउटडोर केटरिंग कवर किया है, ब्यूटी ट्रीटमेंट कवर किया है, हेल्थ सर्विस किया है, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट को कवर किया। अगर आप ये सर्विस ले रहे हो एंड वो सर्विसेज को ही आप आगे देने वाले हो तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो भले आपकी कोविड सिनेरियो के वजह से बस भाड़े पे ली है, जो आपके एम्प्लॉयज को डेस्टिनेशन से पिकअप करेगी और ड्रॉप करेगी आपके फैक्ट्री या फिर ऑफिस तक, वो रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में कवर होगा और आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो एक्सेप्शन क्राइटेरिया है वो यही है कि वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू हिज एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। यानी कि मैं समझाती हूँ, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कल एक लॉ निकाल दिया कि कोविड सिनेरियो है, इट इज कंपल्सरी कि हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस इंश्योर करनी, और ये लॉ पूरे महाराष्ट्र में एप्लीकेबल है। इन दैट केस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रेंटिंग ऑफ या फिर हायर करना पड़ेगा कोई मोटर व्हीकल जो आपके एम्प्लॉयज को पिक करे और ड्रॉप करे, क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी है एम्प्लॉयर के लिए। यानी कि एम्प्लॉयर हैज टू कंपल्सरी हायर अ व्हीकल टू एंश्योर उसका एम्प्लॉय एक जगह से पिकअप किया जाए और फैक्ट्री में लाया जाए या ऑफिस में पहुंचाया जाए तो आपको मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोविड में भी बना। इनफैक्ट कोविड में तो गवर्नमेंट कंटिन्यूसली कह रही थी कि जितना हो सकता है वर्क फ्रॉम होम रहिए, घर के अंदर रहिए, ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। If there is any other question, otherwise I'll take my questions which I'm getting on the personal chat. No, I don't have any more questions. You can proceed with. So I'll take my personal questions, मतलब जो मुझे personal chat पे आए। Yes, yes, please. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है कि इंपोर्ट्स के लिए जो न्यू प्रोविजन आया है, क्रेडिट 2A में अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो हम क्रेडिट कैसे लें। सो लेट मी टेल यू, इनिशियली जब 2A और 2B आया था उसमें सिर्फ जो आपके वेंडर ने GSTR 1 फाइल किया था उसी का क्रेडिट दिख रहा था, RCM क्रेडिट नहीं दिख रहा था, ISD क्रेडिट नहीं दिखता था, इंपोर्ट्स भी नहीं दिखता था। धीरे धीरे करके चीजें चेंज हुई
इम्पोर्ट ISD के लिए ITR सॉरी GSTR 6 आया गया, वहां आपके नाम पे या आपके नंबर पे जो क्रेडिट दिख रहा है वो धीरे धीरे करके आपके 2A और 2B में रिफ्लेक्ट होने लग गया। इम्पोर्ट्स को भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि वो आपके GSTR 2A और 2B में कवर हो, यानी कि जब आप इंपोर्ट करते हैं कोई कुछ, आप उसके ऊपर जो IGST और सेस पे करते हैं, आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। IGST का क्रेडिट आप अपने IGST टैक्स या फिर CGST और SGST के सामने यूज कर सकते हैं, और जो सेस आप पे कर रहे हैं, अगर आपका जो आउटपुट है उस पर सेस लगता है तो आप उसके सामने माइनस कर सकते हैं। सेस जनरली कोल और इन सब पे लगता है, तो ये क्रेडिट आपके 2A में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप तो ऑनलाइन पे कर रहे हैं अपना वो कस्टम ड्यूटी पोर्टल पे जाकर क्रेडिट को ये आपका जो कस्टम ड्यूटी है उसको पे कर रहे हैं, तो आपको 2A में कौन दिखाएगा? और अगर नहीं दिख रहा तो आप किसके पास जाएंगे? वेंडर तो है नहीं यहाँ पर, आपका वेंडर तो दूर देश में बैठा है, उसे तो GST के बारे में पता भी नहीं है। तो यहाँ पर कस्टम्स वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना पोर्टल अपडेट करे, टाइम टू टाइम वो पोर्टल पे जाएं, आपके नंबर के सामने वो क्रेडिट दिखे। अब इसमें भी जो रीसेंट लॉ आया था, वहां गवर्नमेंट ने कहा है कि हम स्पीड अप कर रही है प्रोसेस। जैसे काफी लोगों को अभी भी ऐसे दिक्कत आ रही है जहां पर वो इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन 2A और 2B में वो क्रेडिट नहीं दिख रहा, तो कैसे वो क्रेडिट ले? तो मैं ऐसा कहूंगी कि फर्स्ट गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर दिया है आप वो फॉलो कीजिए, जिसमें आपको आपके जो GST पोर्टल है वहीं पर एक ऑप्शन दिया गया है जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने BOE इंपोर्ट किया उसका क्रेडिट क्यों नहीं दिख रहा, जहां आपको आपका BOE का नंबर डालना है, डेट डालना है, अमाउंट डालना है। अब जो रेफरेंस डेट है, उसने एक रेफरेंस डेट करके भी मांगा है, वो आपका अलग अलग क्राइटेरिया पे डिपेंड करते हैं। उसमें भी उन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए हैं। डेट जब गुड्स एक्चुअली बाहर जा रहे हैं, सेकंड डेट जब आपने कस्टम ड्यूटी पे की, या थर्ड डेट जब आपने अमेंडमेंट कराया अपने BOE में। BOE आया आपके पास, उस पे रॉन्ग कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट हुई है तो आपने उसके लिए अमेंडमेंट के लिए डाला और अमेंड होके नया आया, तो जो ये अमेंड किया है, इन तीनों में से जो भी लेटर रहेगा वो आपका रेफरेंस डेट रहेगा। आपको वो रेफरेंस डेट डालना है, कस्टम पोर्टल से उसको कनेक्ट करना है और चेक करना है कि वाकई में वो क्रेडिट मिला है कि नहीं मिला है। अगर मान लीजिए वो क्रेडिट नहीं दिख रहा है तो आपको तुरंत हेल्प डेस्क पे अपने एक डालना है, जहां आपको ये जो आपने प्रोसेस किया उसका स्क्रीनशॉट देखना है। एरर आ रहा है आपको स्क्रीनशॉट पे वो भी बताना है, और वो क्वेरी आपको हेल्प डेस्क के पास फाइल करनी है। अब आई नो आप बोलोगे यार हेल्प डेस्क पे फाइल करते हैं हम तो अरसों लग जाता है जवाब देने के लिए। इनफैक्ट मुझे तो काफी लोगों ने ये भी बोला है कि ट्विटर पे हमें जल्दी जवाब आता है कंपेयर टू हेल्प डेस्क। तो ट्विटर एक ऑफिशियल खाली हैंडल है, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, बट यस आप ये क्वेरी डाल सकते हैं हेल्प डेस्क पे, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड टेक द इंपोर्ट क्रेडिट। जब पहले 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता था तभी भी आप इंपोर्ट क्रेडिट बेसिस BOE अपना क्रेडिट लेते थे, आपको वो सेम स्टैंड फॉलो करना है, क्योंकि अभी भी जो पोर्टल है वो रेडी नहीं हो पाया उतना कि कस्टम रेगुलर बेसिस पे उसको अपडेट करते थे। हर नई चीज को टाइम लगता है, सेम ही इस चीज को भी टाइम लग रहा है, तो आपको वेट करना है कि कब क्रेडिट आपका शो हो। अगर क्रेडिट शो हो रहा है तो रिटर्न में ले लीजिए, वेल एंड गुड, नहीं तो क्वेरी डाल के क्रेडिट ले लीजिए। नेक्स्ट क्रेडिट मेरे पास आया है कि इलेक्ट्रिसिटी पे क्या GST लगेगा मैडम। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इलेक्ट्रिसिटी पे GST नहीं लगता है, वो अभी भी GST पर्व्यू के बाहर है। बहुत कम ऐसे केसेस GST में आप फॉलो हो रहे हो।
ये जो हम माइनस करते हैं ना नॉन जीएसटी आइटम, बहुत ऐसे कम केसेस होंगे, लेकिन अगर आपका बिजनेस उसमें डील कर रहा है तो यस आपको वो नॉन जीएसटी आइटम को कंसिडर करना होगा। जैसे लॉकडाउन में काफी लोगों ने ना लाइसेंस ले लिया लिकर सप्लाई का, तो लिकर इज आउट ऑफ जीएसटी नेट। बंदा पापड़ मंगोड़ी बेचने वाला था, लिकर का लाइसेंस भी ले लिया, पापड़ मंगोड़ी पे तो जो जीएसटी लगना है, उसमें भी पापड़ पे भी अगर आपको रिसेंटली पता हो तो फ्राइड पापड़ और नॉर्मल पापड़ पे अलग अलग टैक्स लगेगा। जब तक वो टैक्सेबल में आ रहा है अलग बात है। वहीं उसने लॉकडाउन के चलते मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो लीकर का लाइसेंस भी ले लिया। लीकर इज अ नॉन जीएसटी आइटम। जो आपने लीकर के लिए स्पेसिफिकली मान लीजिए कुरियर बॉय को रखा या फिर एक कुरियर सर्विस ली उसके लिए, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और जो आपने पापड़ मंगोड़ी के लिए किया है वो मिलेगा। अब मान लीजिए आपने सेम कुरियर सर्विस पापड़ मंगोड़ी और लीकर दोनों के लिए ली है तो वो कॉमन क्रेडिट में आ जाएगी और आपको ये प्रोसीजर फॉलो करके कॉमन क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज उसका क्रेडिट लेना है। शिल्पा जी एक क्वेश्चन आया है। जी बोलिए ना। I am a business consultant. I provide service at my client's place. In case if I have paid GST on my car servicing bill, will that be eligible for ITC? Ritu, I'm so sorry, your voice is again not audible. I Can you am please? I'll repeat it. Should I post this to you? Yeah, will do. Yes. One second. I am a business consultant. I provide service at my client place. In case I have paid GST on my car servicing bill, will that be eligible for ITC? Again, मैं ineligible और eligible पे जाती हूँ। ये देखिए ये कौन सा एक सर्विस है जो स्पेसिफिकली डिसअलाउड है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। ये देखिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो भले आप क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हो गाड़ी से या नहीं जा रहे हो गाड़ी से, घर पे रखी है, लॉकडाउन के चलते गाड़ी बंद पड़ गई है, सर्विसिंग कराने दी है, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आप क्लाइंट प्लेस पे जाओ नहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैब लेके जाओ तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप खुद की गाड़ी से जाइए तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रेन ऑप्शन अगर आप वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीनेटेड वालों को ही मिलता है, बट उसमें भी क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस है आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक सेम मेरे पास यही क्वेश्चन है ऋतु, आई विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन ओनली। कार वॉशिंग सर्विस पे मुझे क्रेडिट मिलेगा क्या? तो लेट मी टेल यू, कार वॉशिंग सर्विसेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विसिंग। सर्विसिंग में सिर्फ गाड़ी को ऑयलिंग करना नहीं आता है, सभी चीजें आती हैं, जैसे वॉशिंग करना, पॉलिशिंग करना, रिफर्बिशिंग करना, वो सभी चीजें उस पर कवर होती हैं। तो आपको कार वॉशिंग पे भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। आई हैव अ क्वेश्चन जहां पर एक ने लिखा है कि अगर मैंने अपना ऑफिस को रिफर्बिश किया है यानी कि इंटीरियर वर्क कराया तो मुझे क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? So let me take you to the answer. यहाँ पर देखिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज मीन्स अप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। अब जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग और पेंट करा रहे वॉल पे या टाइल्स लगवा रहे हैं, फॉल सीलिंग बनवा रहे हैं, आपके यहाँ पर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों यूज हो रही है, तो वो एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो गया। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे प्लीज मुझे थोड़ा कम क्वेश्चन पूछे क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एक कंप्लीटली अलग एरा है।
उसके लिए अगर हम डिस्कशन करने बैठे तो हमारा एक पूरा और सेमिनार लिया जा सकता है। तो जो सर्विसेज में मैं एक शॉर्ट में बोल देती हूँ, जो सर्विस में आपकी गुड्स और सर्विसेज दोनों वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कहा जाता है, वो अगर आप यूज कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमोल प्रॉपर्टी तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। तो अगर वो सर्विसेज आप सेम सर्विस देने के लिए कर रहे हैं, तो सेम सर्विस देने के लिए कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आप सेम सर्विस दे नहीं रहे यानी कि आप फाइनल कस्टमर है, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब कंस्ट्रक्शन का मैं अगर डेफिनेशन देखूं यहाँ नीचे, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन और ऑल्टरेशन और रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमोल प्रॉपर्टी। तो जो भी आप रीफर्निशिंग करा रहे हो या फिर रेनोवेट करा रहे हो, उसको आप कैपिटलाइज करने वाले हो, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। I have a next question for common ITC. Do we need to reverse if in my profit and loss I have bank FD or interest income only and no other exempt supplies? सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि काफी लोगों के पास बैंक एफडी करके हमेशा इंटरेस्ट इनकम रहेगा। तो इस पे दो लोगों ने अलग अलग दो अलग अलग व्यूज है या दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक कहता है कि सिंस जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है दैट इज बेसिकली योर ट्रांजैक्शन इन मनी, जो स्पेसिफिकली जीएसटी नेट के बाहर है, आपको उसे नॉन जीएसटी आइटम कंसिडर करके उतना रिवर्स करना है। सेकेंड व्यू स्कूल ऑफ थॉट से ये बोलता है जितना भी कॉमन क्रेडिट ले रही हूँ या जितना भी क्रेडिट ले रही हूँ दैट हैज नथिंग टू डू विथ माय बैंक एफडी इंटरेस्ट। यानी कि अब मैं ऑडिट सर्विस ले लूं, सिक्योरिटी सर्विस ले लूं, वो कोई भी चीज मेरे बैंक एफडी से कनेक्टेड नहीं है। आज अगर मेरा बिजनेस चल रहा है तो भी मुझे बैंक एफडी से इंटरेस्ट आएगा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो भी एफडी इंटरेस्ट है तो भी मुझे इंटरेस्ट आएगा। तो कॉमन क्रेडिट उसके लिए एट्रिब्यूटेबल है ही नहीं, तो इसीलिए रिवर्सल नहीं आएगा। तो ये दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये आपके ऊपर है कि थॉट्स अप्लाई करें और क्रेडिट रिवर्स करें या नहीं करें। I'm done with questions with my personal chat. Anyone else with other questions on your end? नहीं शिल्पा जी, और तो कोई क्वेश्चन है नहीं। Members, if anybody have any further question, please post it to the chat box. शिल्पा जी, आई गेस नहीं है अभी कोई क्वेश्चन। शीतल, रितु जी आपके पास क्वेश्चंस बंद हो गए लेकिन मेरे पास पॉपअप अभी फिर से शुरू हो गए। सॉरी, मेरे पास पॉपअप आना चालू हो गए क्वेश्चंस के वापस से। चलो बढ़िया है। दिस इज अ ट्रूली इंटरैक्टिव सेशन। यहाँ पर उन्हें है ना वो कॉमन क्रेडिट वाला जो टोटल क्रेडिट वाला एग्जांपल उन्हें वापस से समझना है। सो इफ यू परमिट तो मैं वो एग्जांपल वापस से ले लूं। अभी तो आपका टाइम ही बाकी है मैम, आराम से बताइए आप। इट्स जस्ट कि मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। ओके, तो इसलिए मैं इज इट, इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली, अदरवाइज इट्स फाइन, वी कैन वाइंड अप। I'll just take it in a short ताकि वो जो भी है उन्हें बुरा नहीं लगे पापा। नहीं, प्लीज टेक अ शॉट ब्रेक इफ यू फील। यहाँ पर हमने कॉमन क्रेडिट लिया है, आपके पास दो
या फिर आप कॉमन क्रेडिट जो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट है आप बोले, कुल में से लेना क्या होता है, यानी कि टोटल क्रेडिट में से आप माइनस करें क्रेडिट जो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है, क्रेडिट जो एग्जाम सप्लाईज के लिए है, क्रेडिट जो नॉन जीएसटी सप्लाई के लिए है, और इनएलिजिबल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट में से आपने ये स्पेसिफिकली टैक्सेबल, एग्जाम्ड और नॉन जीएसटी वाला क्वेश्चन निकाल दिया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट का, जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी, लेबर और रबर यूज कर रहे हैं एक्स में, एक्स पूरा टैक्सेबल है, तो इसमें जो रबर स्पेसिफिकली यूज हुआ है टैक्सेबल में वो आप माइनस कर देंगे, वो कॉमन क्रेडिट में नहीं आएगा, ये रबर का आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा। एक और प्रोडक्ट है वाई जो एग्जाम्ड है, उसमें आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक जो है वो स्पेसिफिकली आप वाई के लिए ही यूज कर रहे हैं, उससे कहीं कोई मिलावट नहीं है। मिलावट मतलब मेरा मतलब ये मिलावट नहीं, एक्स और वाई का के लिए कुछ मिलावट नहीं है, तो आप वो प्लास्टिक को हटा सकते हैं, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। बच्चा कुछ जो क्रेडिट होता है लेबर का, वो दोनों के लिए यूज हो रहा है, एक्स और वाई के लिए, वो कॉमन क्रेडिट में माना जाएगा। अब आपको कॉमन क्रेडिट का कितना पोर्शन टैक्सेबल के लिए करना है, कितना पोर्शन एग्जाम्प्ट के लिए करना है और कितना पोर्शन नॉन जीएसटी के लिए करना है, उसका एक गवर्नमेंट ने फॉर्मूला दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है। एग्जाम सप्लाई के केस में आपको कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर देखना है, यानी कि आपका जो एग्जाम टर्नओवर है, वाई का टर्नओवर जो है टोटल टर्नओवर से कंपेयर करना है और कॉमन क्रेडिट को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उतना पोर्शन ऑफ कॉमन क्रेडिट एग्जाम सप्लाईज के लिए। अगर आप नॉन जीएसटी सप्लाईज भी यूज कर रहे हैं तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 5% ऑफ द कॉमन क्रेडिट को आप माइनस कर दीजिए, आपका वो 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट इज एट्रीब्यूटेबल टू नॉन जीएसटी सप्लाई। जो बचा कुचा क्रेडिट होगा वो है कॉमन क्रेडिट यूज फॉर टैक्सेबल सर्विस, ये क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। मल्टी स्टेट कंपनी रजिस्ट्रेशन इन वेरियस स्टेट, ऑडिट फीस पेड पर company. Do we need to reverse as common ITC? जो ऑडिट फीस का बिल होता है वो स्पेसिफिकली एक एंटिटी को आता है। मान लीजिए आपका एचओ मुंबई में, मान लीजिए आपका एचओ मुंबई में, तो जो ऑडिटर आपको बिल देता है वो हर स्टेट देता है, वो आपको डायरेक्टली एचओ को दे देता है बिल। अभी एचओ की जिम्मेदारी बनती है कि वो कभी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करे। सेकंड होता है कि ऑडिटर आपको हर स्टेट के हिसाब से स्पेसिफिक बिल दे, जैसे आप सपोज स्टॉक ऑडिट करा रहे हैं, तो स्टॉक ऑडिट के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आपको स्पेसिफिक बिल्स दिए हर एक स्टेट में। अगर स्पेसिफिक बिल दिया एक स्टेट में तो ऑडिट फीस उस स्टेट के लिए कॉमन माना जाएगा। अगर एक ही बिल दिया है आपके, तो पहले तो आपको आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना होगा उस एच का, और ऑडिट फीस को सभी स्टेट्स में बांटना होगा। आ जाते हैं टोटल 1 एज एन आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आपको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी स्टेट्स में, और सेकंड एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके बाद आपको ये कॉमन क्रेडिट वाला प्रोसेस करना है। Anything else? Thank you so much, Shilpa ji, for taking huge number of queries. And thank you for this wonderful and interactive session. Thank you, Ritu, for giving me this opportunity to take up this seminar.
Well, I request CA Sheetal Sharma to present a formal vote of thanks. Thank you, Ritu ma'am. It's indeed a pleasure to propose vote of thanks to our speaker. Despite being ill health, she has generally क्या कहते हैं ना, हम अपने पूरे एफर्ट्स और दिल जान से ये सेशन को उन्होंने कंडक्ट किया है. Thank you so much, ma'am, for taking queries of our members and giving your precious time here despite being not well. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. Shilpa ji, as a token of gratitude towards your efforts, we would share a receipt of CABF contribution in your name from the study circle. I'll email that receipt to you. And with this, I thank you all for making this program resounding success. Members, we have another session tomorrow at 6 p.m. Details have been shared on the board. Thank you so much. Thank you, Shilpa ji.